there are two types of principles of management. One which is given by Fayol, Henry Fayol, and second one which is given by the F.W. Taylor. So F.W. Taylor gave you the scientific, what you can say, management rules or principles. Okay, so what is meaning of scientific management? Scientific management का मतलब क्या है? The scientific management can be defined as application of science for each and every element of management. Means what are we going to do? We are going to apply science in management, and that is what the scientific management. Okay, so in general language it means apply scientific tools, methods, and train personnel in order to increase the output. That is called what? Scientific management. Okay, so scientific management insists on replacement of the role of what? The role of the thumb by science. That means decisions in the organization should be taken on the basis of wills and wishes of manager. Should not be taken on the basis of wills and wishes of the manager, but decisions must be based on scientific studies conducted by using what? Conducted by using scientific tools. So that is called what? Scientific management. Okay. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की अलग अलग डेफिनेशन है. एफ.डब्ल्यू. टेलर की डेफिनेशन तो सबसे फेमस है ही है. व्हाट इज दैट? दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली what your man what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. Okay, यानी आपको ये क्लियर होना चाहिए that what you want men to do, मतलब आपके यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उससे आपको क्या करवाना है वो क्लियर होना चाहिए, और फिर आपको ये देखना है that they must do it in the best and the cheapest way. So that is what the scientific management all about. अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, हमने 4 प्रिंसिपल्स की बात की थी. पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ओके, अब एक एक प्रिंसिपल मुझे एक एक स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा जिनको मैं पूछ रहा हूँ. साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या कि भाई टेलर इंसिस्ट दैट द इवेंट दैट एवरीथिंग शुड बी परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. ईच जॉब शुड बी परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड नॉट ऑन द एस्टिमेशन. एस्टिमेट के हिसाब से, अंदाजे से या पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई चीज आप मैनेज नहीं करोगे. यू विल मैनेज इट based on your what? Based on your what you can say, scientific methods, tools. Okay, so what is it? What is the second? What is it? That it should not be hit or miss method. Okay, he says that there should be thinking before doing, whereas scientific decisions are based on which is not in case of rule of thumb. Rule of thumb में ये नहीं होता था. यहाँ पे क्या होगा कि भाई what he said is it should be thinking before doing it. Okay, that was missing in rule of thumb. Next is rule of thumb means dictatorship of managers method, whereas scientific decisions are based on the cause and effect and scientific measurement of the methods and ways of production. मतलब यहाँ पर हर एक चीज का कॉज और उसका इफेक्ट डिसाइडेड होगा, ठीक है, और साइंटिफिक मेजरमेंट होगा और उसके हिसाब से आप कोई भी चीज अप्लाई करोगे. ठीक है, तो देखो एक और चीज आपने इन्होंने क्या लिखी हुई है. फॉर एग्जांपल क्या होता था इन रूल ऑफ थंब, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ his past experience. Taylor insists that standard time for a job should be set up scientifically by performing time study in the organization and then the day's target should be fixed. मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई पर्टिकुलर प्रोसेस करनी है तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करके देखो, उसका डेमो देखो, उसमें आप टाइम कितना लगा वो नोट करो और उसके हिसाब से फिर आप स्टैंडर्ड टाइम सेट करोगे. ओके, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में इतना टाइम लगता है तो इतना टाइम ही लगना चाहिए और पूरे दिन में ये प्रोसेस जितनी भी बार हो वो उतने ही टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब. होप सो. आगे क्या लिखा है देखो. नेक्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में क्या लिखा है? यूज ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. देयर इज only one best method to maximize efficiency and this method could be developed by study and analysis and not by the rule of thumb. Dictatorship के हिसाब से नहीं. Okay. Next is what does rule of science says, that the manager should not take decisions based on his intuitions, will or experience. Okay, and next is what? That next which is written is that take every decision scientifically. ठीक है, अब इन्होंने देखो एक
केस स्टडी भी दी हुई है, ठीक है। क्या लिखा है देखो, रोहन इज डिजायरस ऑफ सेटिंग अप अ स्मॉल फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर पैकिंग मटेरियल्स. He planned to use logical approach and take every decision with facts and figures, with proper reasoning rather than relying on hit or miss method. Okay, so state the principle of scientific management used by Rohan. Okay, तो आंसर क्या है? आंसर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, उसके आंसर्स पीछे दिए हुए हैं, एक्चुअली इन्होंने लिखा है 118 वहां पे दिया हुआ है। तो मतलब आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना उसका आपको आंसर लिखना है यूजिंग दिस मेथड, व्हाट साइंस साइंटिफिक मेथड, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, अंडरस्टूड। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हमने पढ़ लिया था, क्विकली मैं रिवाइज करना चाहूंगा या स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा कि कितना याद है। According to this principle, those who work together in an organization must work in harmony, that is with mutual give and take and proper understanding. ठीक है, मतलब किसी भी चीज को लेके आपके बीच में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, आपको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, एक दूसरे के अगेंस्ट में काम नहीं करना है। So there should be team spirit, there should be harmony between the workers. Okay, generally in every organization there are two group of people, workers group and the management group, and both the groups work as rivals of each other, as workers always feel what they feel, that they are underpaid and are overburdened with the work, and management always feels that the workers are good for nothing, that means they are not doing as we are paying them, हम उनको जितना पे कर रहे हैं उतना वो लोग काम कर ही नहीं रहे। तो इसीलिए in this principle Taylor insists that there is need for both the groups to change their attitude for each other. He insists on mental revolution, which means that complete change of attitude and outlook for each other. कि मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि वर्कर्स जो हैं वो भी इंसान है और वो अपनी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट से काम कर रहे हैं, और वर्कर्स को ये सोचना चाहिए दैट आवर मैनेजमेंट इज गुड इनफ एंड वी आर पेड परफेक्टली एंड वी शुड वर्क ऑनेस्टली. Okay, so they must develop positive thinking for each other and work with harmony and avoid discord, as their objectives are in one direction only. Objective तो दोनों के सेम ही है. So management should share the gains of the company with workers. ठीक है, मतलब उनको इंसेंटिव्स भी मिलना चाहिए, प्रॉफिट में से भी उनको हिस्सा देना चाहिए. At the same time, workers must contribute their best level. Taylor feels that prosperity of the organization depends upon prosperity of employer as well as employee. अगर दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, तो ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा. दोनों में से सिर्फ कोई एक ग्रो कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगा. अंडरस्टूड? जैसे वर्कर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न मोर, and objective management is what? To maximize production. So instead of discord for each other's objective, workers can earn more by producing more, which will help in maximize the production also. मतलब मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? वर्कर्स को फिक्स सैलरी के अलावा इंसेंटिव्स देना चाहिए कि भाई हम आपको इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने का टारगेट दे रहे हैं, अगर आपने इतना यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिया तो हम आपको बोनस देंगे, एक्स्ट्रा पैसा देंगे. तो दोनों का काम हो जाएगा ना कि भाई वर्कर्स एक्स्ट्रा काम करने के लिए एनकरेज होंगे. क्यों? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है कि उनको ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और वो ज्यादा सेल कर पा रहे हैं, तो उनको भी वर्थ लगेगा कि हाँ भी मैं वर्कर्स को एक्स्ट्रा पे करूंगा तो मेरे लिए एक्स्ट्रा यूनिट्स बना के देंगे. तो इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम. अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हार्मनी बट नॉट डिस्कॉर्ड. इसके कुछ की वर्ड्स दे रखे हैं, नोट्स में आपको सेंड करूंगा तो आप देख लेना. राइट, तो यहाँ पर बेसिकली किसकी बात हुई है? मेंटल रेवोल्यूशन की बात हुई है, मतलब चेंज इन एटीट्यूड. ठीक है, यानी वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने या एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए, तो ही दोनों के ऑब्जेक्टिव्स पर्पस सर्व होंगे और ऑर्गेनाइजेशन का भी पर्पस सर्व होगा. इज दैट क्लियर? समझ में आया? जैसे इसी का एक केस स्टडी दिया हुआ है that ABC Limited, a tire manufacturing company, concerns has been established for more than 10 years. Having made good profit in the past, company wanted to expand further and hence did not declare bonus for the previous year. The workers got agitated and trade unions declared strike, and they demanded for bonus and other facilities. The management decided not to give in to their demands.
Which principle of scientific management is overlooked in the given case? तो ये तो हमको पता ही है कि भाई harmony but not discord. This principle has been overlooked. बराबर? But my in this case there are two ways. Number one, yes, कि आपने अच्छा प्रॉफिट किया, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया तो कंपनी को अपने वर्कर्स को बोनस देना चाहिए क्योंकि वो उनका हक है, क्योंकि कंपनी अच्छा प्रॉफिट तभी कर पाई जब वर्कर्स ने अच्छे से काम किया. ठीक है, तो ऑब्वियसली बोनस इज दैट राइट. लेकिन कंपनी ये कह रही है कि भाई हमको ग्रो करना है, उसके लिए हमको पैसों की जरूरत है. सो व्हाट द कंपनी कैन डू इज कंपनी कैन ऑफर देम द सेकंड थिंग कि ठीक है, एक काम करो, बोनस की जगह हम ये पैसे जो है वो कंपनी में री इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रोथ के लिए. तो हम कंपनी जो भी ग्रोथ या एक्सपांशन करेगी उसमें बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से वर्कर्स को कुछ परसेंटेज शेयर दिया जाएगा. So in this way you can solve this problem and there can be harmony back again. ये जो प्रिंसिपल है वो एक्सटेंशन है. ये जो थर्ड प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये सेकंड प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है. कि कोऑपरेशन का मतलब क्या, कि वी शुड कोऑपरेट ईच अदर, द वर्कर्स मस्ट कोऑपरेट ईच अदर एंड दे शुड नॉट थिंक अबाउट देयर ओन टास्क ओनली. जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फॉर एग्जांपल 10 वर्कर्स है, सबको 100 यूनिट्स बनाने के लिए दिए हैं, एक वर्कर नहीं आया तो बाकी 9 वर्कर जो रह गए उन्होंने अपने 100 यूनिट्स बनाए, लेकिन कंपनी का जो टारगेट था 1000 यूनिट्स का वो अचीव नहीं हुआ. तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से ये होगा कि वर्कर्स के इंडिविजुअल टारगेट तो अचीव हो गए लेकिन कंपनी का टारगेट अचीव नहीं हुआ. तो अल्टीमेटली दी कंपनी विल फेल, और आपने टाइम पर पूरा नहीं किया तो कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है. तो इन दैट केस वर्कर्स को क्या करना चाहिए, वर्कर्स को ये करना चाहिए कि अपना इंडिविजुअल टारगेट गोल ना सोच के कंपनी का ओवरऑल गोल अचीव करने के लिए अगर एक वर्कर नहीं आया तो उसका प्रोडक्शन बाकी सारे वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए. अंडरस्टूड? तो क्या लिखा हुआ है देखो, सेकेंड लाइन पढ़ो. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरीड ऑन इन कोऑपरेशन विद ईच अदर विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर. वर्कर्स एंड मैनेजर मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन. अच्छा, वर्कर्स को भी कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर काम करना चाहिए और साथ ही साथ वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में भी क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए. द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम बिकॉज व्हेन स्टैंडर्ड और टारगेट्स आर सेट अप in the consultation of workers then they will try their best to achieve it. मतलब आप कोई भी अगर आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो ना तो उसमें वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लो, वर्कर्स को बताओ कि देखो भाई हम इतना टारगेट अचीव कर रहे हैं, आप कर पाओगे ना. और वर्कर्स अगर हाँ बोलते हैं तो फिर वो टास्क अरेंज करो, और अगर वो ना बोलते हैं तो उनको समझाओ कि भाई उनके लिए, कंपनी के लिए ये कितना जरूरी है. तो इन एनी वे यू टू टेक द वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस फर्स्ट एंड देन यू शुड सेट द टारगेट. तो इससे क्या होगा, टारगेट्स अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वर्कर्स फिर बाद में कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट बोल सकता है कि हमने आपको कॉन्फिडेंस में लेकर कन्विंस करके ही काम किया था. नाउ यू कैन नॉट से दैट वी कैन नॉट डू इट. ओके, so to have cooperation, management should welcome good suggestions of the employees and they should be rewarded for their suggestions. At the same time, workers should not go on strike and make unnecessary reasonable demands. तो आप देखो कहीं ना कहीं टेलर्स के प्रिंसिपल्स और ये प्रिंसिपल्स मिलते जुलते हैं. ये हमने जो अभी दो प्रिंसिपल्स किए ना उसमें अगर आपको याद हो तो क्या था, सबऑर्डिनेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एक ये था. और दूसरा ये जो बात कर रहे हैं ये एस्पेक्ट डी कॉप्स था, कोऑपरेशन उसमें था ही. ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स बहुत मिलते जुलते हैं, राइट. उसके बाद सो दिस वन इज एक्चुअली इनिशिएटिव. सही है. तो फेयोल का कौन सा प्रिंसिपल है, इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव की बात हो रही है, राइट. उसी तरह से इसका कौन सा है टेलर का, अभी हमने बात की कौन सा, कोऑपरेशन, बट कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म. अंडरस्टूड? परफेक्ट है, गुड. फिर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, तो मतलब आपको वर्कर्स को ट्रेन करना चाहिए और उनको राइट वर्कर्स शुड बी देयर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम. अंडरस्टूड? तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, साइंटिफिक सिलेक्शन मेथड्स यूज करनी चाहिए वर्कर्स के सिलेक्शन के टाइम पे, ताकि यू गेट द राइट वर्कर एट द राइट प्लेस, और उनको आपको ट्रेनिंग देना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. ओके, और यहाँ पे लिखा भी है आगे, क्या लिखा है देखो, एम्प्लॉई मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग
from time to time to update their knowledge. This will ensure greatest efficiency and prosperity for both company and the workers. Okay. So he insisted that due care should be taken while selecting the employees, and after selecting they must be given job according to their qualification. उनकी qualification के हिसाब से, skills के हिसाब से उनको काम देना चाहिए. Okay, so these were Taylor's principles of management. अब हमने टेलर्स की टेक्निक की बात की थी, और टेक्निक में ये सबसे पहली टेक्निक जो हम बात कर रहे थे दैट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप. और इस फंक्शनल फॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो काम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, वो दो पार्ट कौन से, विच आर दोस टू पार्ट्स? तो देखो, in this technique Taylor suggested the division of factory in two departments. Which are those two departments? Planning department and production department. As Taylor felt that workers must be free from the burden of planning and they must concentrate on worker and production. और उसकी वजह से आपको मैंने जैसे बताया था कि एक वर्कर के ऊपर टोटल कितने बॉस होंगे. तो सी दिस व्हाट आई हैड एक्सप्लेन, ये मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री मैनेजर के नीचे दो डिपार्टमेंट, एक प्लानिंग और एक प्रोडक्शन. प्लानिंग के कितने इंचार्ज होंगे? 4. प्रोडक्शन के कितने इंचार्ज होंगे? 4. और सब लोग किसको इंस्ट्रक्शंस देंगे? वर्कर्स को. यानी टोटल कितने हो गए? 8. देयर विल बी 8 बॉस ऑन 1 वर्कर. प्लानिंग इंचार्ज में पहला कौन होगा? रूट क्लर्क, जो रूट बना के देगा. दूसरा होगा इंस्ट्रक्शन क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शंस देगा. तीसरा होगा टाइम क्लर्क, वो डिसाइड करेगा स्टैंडर्ड टाइम कि ये प्रोसेस कितने टाइम में होनी चाहिए. फिर डिसिप्लिनेरियन होगा, वो क्या ध्यान रखिएगा कि चीजें डिसिप्लिन में हो रही है नहीं हो रही है, या किस तरह से डिसिप्लिन, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करेगा. तो ये 4 लोग प्लानिंग करेंगे, मतलब ये प्री प्रोडक्शन काम है. फिर जब प्रोडक्शन होगा तब होगा गैंग बॉस. गैंग बॉस क्या करेगा? वो सारे टूल्स मशीन सब कुछ रेडी रखेगा. स्पीड बॉस क्या करेगा? वो स्पीड का ध्यान रखेगा कि भाई टाइम पे चीजें हो रही है या नहीं हो रही है. रिपेयर बॉस क्या करेगा कि वो जो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है उसका काम देखेगा. और इंस्पेक्टर जो है वो पूरी प्रोसेस जो है वो एज पर शेड्यूल हो रही है, एज पर प्लानिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वो ध्यान रखेगा. सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल, व्हाट यू कैन से, फंक्शनल फॉर्मेनशिप. ठीक है, which is decided by Fayol, है ना. So this is called functional foremanship. और उसमें टोटल कितने बॉस होते हैं? 8. बराबर है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. उसके बाद दूसरी जो मेथड है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वेट अ मिनट. हाँ, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की दूसरी मेथड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. नाउ व्हाट डज इट मीन? Scientific management always emphasize on maintaining standards relating to every step of business operation. That means standardization of output is possible if the standard is maintained right from the selection of tools, equipment and machine to use, maximize the output by keeping in mind the quality standards. अब इसका मतलब क्या? यहाँ पर ये बहुत important चीज है. What does Taylor says? There has to be a standard. एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा सभी चीज का. और आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कब सक्सेसफुल हो सकता है? कि जब वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो. और अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है तो उसको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसको रिजॉल्व करके वापस से यू टू बैक टू द स्टैंडर्ड. सो देयर हैज टू बी स्टैंडर्ड ऑफ एवरीथिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट. और वो कब होगा? व्हेन यू आर हैविंग राइट टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स, ओके, एंड you are using them you maximize the output by keeping in mind the quality standard. So standardization does not mean quality standard, but it refers to setting up standard for size, type, weights, measures and quality of product. ठीक है, कि ये सारे स्टैंडर्ड सेट करने हैं आपको. किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए. ओके. So according to Taylor's scientific method of production must be selected to develop standard. To set up standard, the management must use of work study technique, which includes what? Time study, motion study and fatigue study. अब ये क्या है? टाइम स्टडी. सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है. किसका? किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा वो डिसाइड करना है. वो कैसे होगा? कि आप
पहले ट्रायल बेसिस पे कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करो, प्रोड्यूस करो, एक प्रोसेस कंप्लीट करो, और उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है वो देखो, ठीक है। और आप देखो कि कहाँ कहाँ टाइम बचाया जा सकता है, और वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद आप एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करो। दूसरा है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या बोलता है? मोशन स्टडी का मतलब क्या कि जितनी मूवमेंट्स कम हो, यानी कि जितना प्रोसेस सिंपल हो उतना अच्छा। मतलब फॉर एग्जांपल कि समझो आपके पास 4 वर्कर हैं, ठीक है, और समझो आपके पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चीजें उठा के रखनी है और 4 वर्कर्स हैं। तो पहले आप क्या कर रहे हो कि चारों वर्कर्स टर्न बाय टर्न आ रहे हैं, पॉइंट ए से लेकर उठा के चीज पॉइंट बी पर रख रहे हैं। फिर आपने सोचा कि नहीं यार, ये करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, 4 वर्कर्स को पॉइंट ए और बी के बीच में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सेट कर दिया। तो क्या होगा, फर्स्ट जो वर्कर है वो चीज उठा के सेकंड वर्कर तक पहुंचाएगा, सेकंड वर्कर उसको थर्ड पे पहुंचाएगा, थर्ड वाला फोर्थ पे, और फोर्थ वाला पॉइंट बी पे वो चीज रख देगा। तो इससे क्या हुआ कि उससे आपकी जो मूवमेंट्स है, वर्कर्स मूवमेंट्स की भी, हर एक वर्कर 4-4 बार चल के आ रहा जा रहा था, उसकी जगह क्या हो गया, उसका डिस्टेंस कम हो गया, तो उसको उतने ही डिस्टेंस में घूमना है। तो इससे क्या होगा, आपकी मूवमेंट्स फास्ट होंगी, मूवमेंट्स फास्ट होगी तो प्रोसेस फास्ट होगी। समझ रहे हो? तो ये होता है मोशन स्टडी कि भाई कितने, कैसे हम मोशंस या नंबर ऑफ मूवमेंट्स कम करें। तीसरा होता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी बोलता है कि भाई आपको वर्कर्स के जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें प्रॉपर ब्रेक रखने चाहिए। वो ब्रेक रखने से क्या होगा, वो फटीग नहीं आएगा, मतलब वो थकेगा नहीं, थकेगा तो ब्रेक से वो क्या होगा, रिचार्ज होकर फिर से काम करने लगेगा। तो देयर शुड बी प्रॉपर ब्रेक्स बिटवीन टू प्रोसेसेस और बिटवीन द वर्क टाइम। वर्कर्स को टाइमली ब्रेक मिलना चाहिए ताकि फटीग कम हो और उनकी एफिशिएंसी बनी रहे। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड फटीग स्टडी। सो इन सब से क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट होते हैं और वर्क क्या हो जाता है, सिंपल। Okay, so even modern techniques such as Kaizen, Six Sigma, etc. can be used to set up standard. Six Sigma क्या है पता है? Six Sigma सर्टिफिकेट किसको मिलता है? डब्बा वाला मुंबई, याद करो, उनके पास Six Sigma सर्टिफिकेट है। Six Sigma सर्टिफिकेट का मतलब क्या? The chances of error is only 1 in 16 million transactions. 16 मिलियन ट्रांजेक्शन में सिर्फ एक एरर हो ना तो उसको सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेट मिलता है। जो होंडा के पास है, होंडा या ह्युंडई के पास है, जो इंजीनियरिंग कंपनी है, मतलब जब जहाँ पे सब कुछ मशीन से होता है, पर डब्बा वाला सब मैन्युअल वर्क होता है, लेकिन एरर के चांसेस नथिंग, उनके पास सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेट है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेट अप द स्टैंडर्ड लाइक दिस, काइजन, ये सब स्टैंडर्ड्स के नेम है, मेथड्स है अलग अलग, काइजन, सिक्स सिग्मा एटसेट्रा कैन बी यूज्ड टू सेट अप द स्टैंडर्ड्स। Companies like Nokia, Apple, Nike, Videocon, etc. are using techniques of standardization. और क्योंकि उनके स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक्स वो यूज करते हैं, इसलिए आप देखना उनके प्रोडक्ट हमेशा सेम क्वालिटी के मिलेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। तो मतलब चाहे वो प्रोडक्ट यूएसए में बिक रहा है, चाहे वो इंडिया में बिक रहा है, उसका क्वालिटी सेम होगा। हाँ, इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर उन्होंने प्राइस में कॉम्प्रोमाइज किया तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा। अदरवाइज समझो 50,000 का जूता जो नाइकी का यहाँ पे मिल रहा है, 50,000 का जूता जो अमेरिका में मिल रहा है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, सेम होगी। या फिर जो एक मॉडल है, ठीक है, प्राइस भी जाने दो, मॉडल, कि जिस मॉडल का जूता आप यहाँ पे लोगे वही मॉडल का जूता अगर वो यूएसए में बेच रहे हैं तो दोनों का स्टैंडर्ड क्या होगा, सेम होगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ दे मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या स्टैंडर्डाइजेशन का, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक फिक्स टाइप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस। मतलब क्या होगा, सब जगह एक जैसा यूज होगा तो आप क्या कर सकते हो, पार्ट्स इंटरचेंज भी कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल कि समझो पंजाब में भी जूता बन रहा है, गुजरात में भी बन रहा है। अब समझो पंजाब में अभी डिमांड कम है और गुजरात में ज्यादा है, तो जो पार्ट पंजाब में मैन्युफैक्चर हुआ है उसको आप गुजरात में भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों जगह सेम क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हो। समझ रहे हो? कई कई चीजें होती है, जैसे संकल्प है, तो संकल्प का आप सांभर देखोगे ना, तो संकल्प का सांभर कहीं पर भी पियोगे ना, उसका टेस्ट सेम होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो क्वालिटी मेंटेन की हुई है, राइट। तो जैसे जितनी भी ब्रांडेड चीजें हैं उनका यही होता है। फॉर एग्जांपल पिज्जा आप ले लो, डोमिनोज पिज्जा ऑल ओवर इंडिया एक ही जैसा आपको टेस्ट मिलेगा सब जगह। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है।
ठीक है, तो इससे क्या होता है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट इज पॉसिबल, कि भाई समझो एक पार्ट एक जगह ज्यादा बन गया है, दूसरी जगह कम है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो पार्ट ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि सेम स्टैंडर्ड का है इसलिए। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन, आप मैन और मशीन का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि बॉस तुम्हारा स्टैंडर्ड ये है, तुमको ये इस स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस हमेशा देना है, ठीक है। सो सिंप्लीफिकेशन एम्फेसाइज ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि सब इक्वल होगा साइज एंड टाइप्स, ठीक है ना। सो एज मोर वेराइटीज मींस मोर इन्वेंटरी, more type of machinery, more labor costs, etc. By simplifying the task, there can be economy in use of machine, labor, inventory, maintenance. मतलब मैंने बोला कि क्योंकि सब जगह सेम टाइप की चीज यूज होती है, तो एक जगह बनी हुई चीज दूसरी जगह यूज हो जाएगी, मतलब यूज मतलब कहीं पर भी वेस्टेज होगा नहीं। Understood? So there'll be less wastage. Understood? Right? So this is called standardization and simplification. समझ में आ गया? सो बाकी की 3 मेथड्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा।